A very good morning, students. I am Arun sir. Today we are going to learn 4th standard subject Environmental Studies Part 2, third lesson Maratha Sardar, the famous house of the Bhosle. In the previous lesson, we studied the Santa of Maharashtra, their performance and teaching they gave. Now, in this lesson, we will study the Bhosle's family, one of the famous house of the Maharashtra. Come on, students, take out your books, see page number 8. Chapter number 3, Maratha Sardar, the famous house of Bhosle. Period of unrest. As the Sant preached devotion to God, the brave Maratha Sardar started a tradition of bravery. बच्चों, जिस प्रकार महाराष्ट्र के संतों ने लोगों के मन में प्यार की भावना निर्माण की, उसी प्रकार महाराष्ट्र के जो संत महात्मा सरदार थे, जो मराठा सरदार थे, उन्होंने यहाँ के लोगों के मन में शौर्य, साहस और ताकत का एहसास दिलाया. इट मीन्स just as the sant created devotion in the minds of the people, so did the Maratha chief create courage on the mind of the people. This was a period of great unrest. The two sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. They made use of the armies of Maratha Sardars in this war. देखो बच्चों, बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह, इन दोनों ने महाराष्ट्र को दो हिस्सों में बांट लिया था, जिसके कारण आदिल शाह और निजाम शाह के बीच हमेशा झगड़े होते थे. लेकिन इनको लड़ने के लिए दोनों को सैनिकों की आवश्यकता थी. सैनिक मतलब आर्मीज. हाँ, तो ये मराठी सैनिकों का यानी कि मराठी सरदारों का इस्तेमाल करते थे. आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड निजाम शाह ऑफ अहमदनगर had divided the parts of Maharashtra among themselves. So there were always battle between the two. They needed troops to fight. For this they used Maratha Sardar. The brave Maratha Sardars. The Maratha were both brave and tough. They were also fearless and loyal to their masters. They were very proud of their achievement on the battlefield. देखो बच्चों, मराठे सरदार बहुत ही साहसी, शूर और स्वामिनिष्ठ थे. स्वामिनिष्ठ मतलब लॉयल. अपने राजा से कभी गद्दारी नहीं करते थे. लड़ाई में पराक्रम, शौर्य दिखाना उनके लिए गर्व की बात था. इट मीन्स Maratha Sardars were brave, courageous and loyal. It was a matter of pride from him to excel in battle. The brave Maratha soldier with a spear in hand and sword at the side would ride in his Sardar's cavalry. All the Maratha Sardars had their own private armies. If such a Sardar went to the Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him a Sardar of his kingdom, and sometime confirmed a Jagir upon him. The Sardar who received such a Jagir considered himself a राजा. देखो बच्चों, the brave Maratha soldiers with a spear in a hand and sword at the side would ride
इन दिस सरदार कैवलरी। ये जो मराठा सरदार थे ना, हाथ में भाला और कमर पर तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर मराठा जवान सरदार के फौज में दाखिल होते थे। इस प्रकार मराठा सरदार के पास खुद की अपनी फौज होती थी। ऑल द मराठा सरदार्स हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज। इफ सच अ सरदार वेंट टू द सुल्तान विथ हिज आर्मी, और ये क्या करता था, ये जो मराठा सरदार है अपनी आर्मी लेके, अपनी फौज लेके सुल्तान के पास जाता था, तो सुल्तान उसे अपने पास चाकरी करने के लिए रखता था। द सुल्तान गेव हिम एम्प्लॉयमेंट, और इसके बदले में सुल्तान उनको तनख्वाह देता था, जागीरी देता था। जागीरी देना मतलब कुछ गांव, कुछ एरियाज, महल उस सरदार को देना। और देखो बच्चों, जिस सरदार को ये जहागिरी मिलती थी ना, वह सरदार उस गांव का अपने आप को राजा समझता था। नेक्स्ट, देयर वेर मेनी फेमस मराठा सरदार एट द कोर्ट ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर। देखो बच्चों, बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तान के पास चाकरी करने के लिए बड़े बड़े मराठा सरदार रहते थे। अब देखो, हमें एग्जाम में क्वेश्चन होता है मैच द पेयर। अहमदनगर में निजाम शाह था और बीजापुर में आदिल शाह। ए बी। The more famous among them were the Jadavs of Sindhkhed, Nimbalkars of Phaltan, Ghorpades of Mudhol, Mores of Zawli, Bhosles of Verul. The Sindhkhed Jadavs were descendants of the Yadavas of Devgiri. Jizabai, the mother of Shivaji Maharaj, was the daughter of Lakhoji Rao Jadhav of Sindhkhed. देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जो जिजाबाई थी, वो सिंदखेड़ के जो राजा थे लखोजी जाधव, उनकी बेटी थी। शिवाजी महाराज मदर्स जिजाबाई ऑज द डॉटर ऑफ लखोजी जाधव ऑफ सिंदखेड़। इस प्रकार कुछ जो फेमस मराठा सरदार थे, उसमें से सिंदखेड़ के जाधव थे, फलटन के निम्बालकर थे, मुधोल के घोरपड़े थे, जावड़ी के मोरे थे, वेरुल के भोसले थे। और इसमें से जो सिंदखेड़ के जाधव सरदार जो थे, उस जाधव सरदार की एक लखोजी जाधव जो थे, उनकी बेटी माता जिजाबाई, ये शिवाजी महाराज की माँ साहेब है। और ये लखोजी जाधव सिंदखेड़ के थे। नेक्स्ट, ट्रेडिशन ऑफ ऑलर। All these Sardar were brave, but many of them were shown enemies of one another. देखो, महाराष्ट्र में बहुत सारे मराठा शूर थे, साहसी थे, धाड़सी थे, लेकिन उनकी आपस में कभी बनती नहीं थी। It means the Maratha chief was brave, adventure, but they did not get along with each other. They never thought they should unite and do something for their own people. वो जो है अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसी भावना इनके मन में नहीं थी, जिसके कारण उनकी शूरता, साहसता का उपयोग हमेशा दूसरे लोगों के लिए होता था। So all their valors and bravery serve the interest of others. Even so, they kept alive the warlike spirit, especially among the young. लेकिन एक बात है, उन लोगों ने अपने लोगों के मन में साहस, धाड़स
की भावना जगाई थी। ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ते थे, लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के हजारों जवानों के दिल में इन सरदारों ने एक जगह बनाई थी। उन्होंने अनेक साहसी मराठा सिपाही बनाए थे। अमॉन्ग द फेमस फैमिलीज द भोसलेस ऑफ वेरूल शोड ग्रेट ब्रेवरी एंड एंटरप्राइजेस। महाराष्ट्र के शूर घरानों में से वेरूल के भोसले घराने बहुत ही बहादुर और शूर निकले थे। नेक्स्ट, द टेम्पल ऑफ Grushneshwar. It was about 400 years ago. The temple of Grushneshwar near the Verul caves of falling to peace. देखो बच्चों, लगभग 400 साल पहले की बात है। वेरुल के गुफाओं के पास एक घृष्णेश्वर का पुराना मंदिर था। उसकी दीवारों में दरारें भी पड़ी थी। The walls had developed cracks. The priest also had desecrated the temple. जो मंदिर का पुजारी था ना, वो मंदिर को कब का छोड़ चुका था। वो मंदिर छोड़ के चला गया था। Thus, the temple which was built in honor of great God was totally neglected. All the devotees who come there mourn over the sorry state of the temple, but no one thought of repair it. देखो बच्चों, इतना बड़ा मंदिर, लेकिन इसकी ऐसी अवस्था। उस मंदिर को देखकर भक्तों को बहुत दुख होता था, लेकिन उसे ठीक करने के बारे में कोई सोचता नहीं था। All devotees was totally neglected this temple. All the devotees who come there mourn over the sorry state of the temple, but no one thought of the repairing it. सबको दुख होता था, लेकिन उस मंदिर को ठीक करने के बारे में कोई भी सोचता नहीं था। नेक्स्ट, a great devotee of Shiva visited the temple regularly. लेकिन एक शिव जी का जो भक्त था, वो उस मंदिर में रोज जाकर भगवान शिव जी की पूजा करता था। He would put flowers and bell and the lingam and express his innermost thoughts to the God. वो मंदिर में जाकर शिव जी को फूल चढ़ाता था, बेल का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाकर हाथ जोड़कर अपने मन की बात उसे कहता था। He carried out extensive repairs to the temple and restored it to its original condition. एक बार उसने अपने साथ कुछ मजदूर लेकर गया और उन मजदूरों के हाथों से उसने वो पूरा मंदिर ठीक कराया। मंदिर का पुराना वैभव जो था, पुराना जिस प्रकार का मंदिर था, उसका उसी प्रकार उसे बना दिया। Now there were lights both inside and outside the temple, and the lost grandeur of the Ghuneshwar was restored. मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद, उसको अच्छे से रिपेयर करने के बाद, उसका जो भी पुराना वैभव था उसे प्राप्त कर दिया था। अब आपके मन में विचार आया होगा, कौन था ऐसा शिव भक्त? Who was this devotee? Who did all this? किसने किया ये? कौन था ऐसा इस भगवान शिव जी का भक्त जिसने ये घृष्णेश्वर का मंदिर वापस ठीक ठाक कर दिया था? He was मालोजी राजे भोसले। वो एक शिव भक्त था जिनका नाम था मालोजी राजे भोसले। Okay students, next period we will see the second part video of this lesson. Now I will give you some homework. Write it on your notebook. Read the lesson carefully first. Listen to the video carefully and then write down the answers to the questions. Okay? Thank you.